Dear students, we can easily calculate the consumer surplus using the integration. What if we have to compare two consumers for their consumer surpluses? We can do the same by using integration. Let us see how we can do that. In other words, what we are trying to do is to calculate the differential of the consumer surplus between two consumers. Here we are starting with an example in which there is exercise or practice of price discrimination, and the monopolist is doing this. Weekly market demand curve is modeled with the help of this equation, and Q is the quantity which is sold, and there are two different prices that can be charged, and the consumer have their own reservation prices. And we must remember कि reservation price क्या होती है. From the point of view of the consumer, it is the maximum amount that he or she can pay. So यहाँ पर चूंकि हम दो consumers या customers की बात कर रहे हैं, the first one has a reservation price of $42, and the second one has the reservation price which is equal to $10. Now what we are trying to do is to compare the consumer surpluses between the two consumers. Graphically, we can do that, but before that we have made a demand curve, that is the demand curve that was given in a mathematical form, and we can see it's a negatively sloped demand curve, and it makes sense because the demand curve is a negatively sloped demand curve. Now we are going to do the hair splitting with reference to both of these, that is the first consumer or customer and the second one. We know that the inverse demand function is given, and the reservation price of the first consumer is 42, and the reservation price of the second consumer is 10. Now we are making a table which will continue for next 4 slides, and it has 3 columns. The first one is the variable with respect to which we are doing the analysis, और जो second column है उसके अंदर हमने पहले consumer की calculations की हैं, और जो तीसरा column आपको नज़र आ रहा है उसमें हमने दूसरे consumer का analysis किया है तीसरे column में. Now this is the demand curve from the point of view of the first customer, and this is from the point of view of the second customer. आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा ट्वीक किया है, और वो ट्वीक ये है कि हमने Q जो कि जनरल था वहाँ पर अब Q1 कर दिया है, और जो प्राइस जनरल थी उसे हमने स्पेसिफिक कर दिया है P1R के फॉर्म में, एंड दैट मीन्स के प्राइस reservation price of the first consumer. Same holds for this. आप देख सकते हैं कि सेकंड जो हमने इक्वेशन ऑफ डिमांड को कन्वर्ट किया है वो भी इन्हीं लाइंस पे किया है. नाउ QD अगर हम यूज़ करें, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द QDs, क्योंकि हमारे पास P1 है और P2 है, सो वी कैन ईजीली फाइंड द QDs by putting the values of P1 and P2 respectively. इसलिए फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि हमने 42 को सब्सटीट्यूट किया, और सेकंड में आप देख रहे हैं कि 10 को सब्सटीट्यूट किया, which are respectively the reservation prices of the first and the second consumers. ये जो calculations हैं, I hope you can easily do these because this is simple algebra. और इसके अंदर जो unknown है that is Q1, जो कि हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, and that was equal to 3. और इस केस में जो unknown रह जाता है वो है Q2, जिसे हमने आखिरकार इवेल्युएट कर लिया, which is equal to 5. So now we are having the ordered pairs of the reservation prices and the respective quantities, that is P1R and Q1 versus P2R and Q2. So ordered pair हमारे पास develop हो गए. Now it's easier for us to do the consumer surplus analysis. इसकी डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बाय फर्स्ट पर्सन एट रिजर्वेशन प्राइस, और सेम होल्ड्स फॉर द सेकंड पर्सन जिसमें हम कह रहे हैं फॉर द सेकंड पर्सन.
अब हम एक और वेरिएबल के लिहाज से कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। बिकॉज आपको पता है कि कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली डिफरेंस होता है टोटल कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल एक्सपेंडिचर का, जो चीज़ हम पहले पिछली लेक्चर्स में एग्जीक्यूट करके आ चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंथ इनटू विड्थ ऑफ दैट ट्राइंगल, और ट्राइंगल में जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी ऑफ दैट रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल की जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो हैं ये, दैट इज़ द आउटपुट एंड द प्राइस। प्राइस आपको पता है 42 थी, और आउटपुट जो हमने क्वांटिटी डिमांडेड निकाली थी दैट वाज 3। सिमिलरली यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी, रिजर्वेशन प्राइस 10 के ऊपर, और ये रिजर्वेशन प्राइस जो है एक्चुअली सेकंड कंज्यूमर के लिहाज से। सो हमने इस स्टेप में जो चीज़ कैलकुलेट की है वो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर पहले कंज्यूमर के लिए और दूसरे कंज्यूमर के लिए। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस वेरिएबल एज वेल। अब आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट वेरिएबल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट शुड बी द टोटल विलिंगनेस टू पे। लेट अस सी। तो आप देख रहे हैं कि टोटल कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे है द नेक्स्ट वेरिएबल दैट वी आर लुकिंग फॉर, और आपको याद होगा कि वो इंटीग्रेशन से, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली द होल एरिया अंडर द कर्व, उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें वो लिमिट्स मेंशन की हुई हैं जो कि एक्स एक्सिस पे थी। एक्स एक्सिस पे था हमारे पास 0 से 3 तक इन केस ऑफ द फर्स्ट कंज्यूमर, जिसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 3 थी, और जो सेकंड हमने कैलकुलेट की थी कंज्यूमर के लिए वो थी 0 से लेकर 5 तक। सो लोअर और अपर लिमिट्स हमारे पास कैलकुलेट हो गई। ये यहाँ पर 5 आएगा बिकॉज ये सेकंड कंज्यूमर है। सो ये सारी कैलकुलेशंस दे आर देयर बिकॉज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर चुके हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप ये कर सकते हैं। स्टिल मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे दूंगा। ये है पहला कंज्यूमर और ये है दूसरा कंज्यूमर। हमने इस फंक्शन को, जो कि इन्वर्स डिमांड फंक्शन था, बोरो किया और उसे हमने सॉल्व किया फॉर दीज टू सिचुएशंस, दैट इज़ द फर्स्ट कंज्यूमर एंड द सेकंड कंज्यूमर। पहले कंज्यूमर के लिए जो लोअर और अपर लिमिट्स थी वो थी 0 और 3, उसके लिहाज से ये सॉल्व किया है। ये मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, और 162 इसका आंसर आएगा। और अगर हम सेकंड कंज्यूमर के हवाले से देखें तो जो लोअर और अपर लिमिट्स बनती हैं वो 0 और 5 हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन सिंपली सॉल्व इट, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की मेथोडोलॉजी है उसे मैं फॉलो करूँगा और इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और इसका आंसर जो मेरे पास आएगा दैट विल बी 216.667. So now I can say that I have calculated yet another variable which is the consumer's total willingness to pay. Now I can finally calculate the consumer surplus, जो कि डिफरेंस होगा consumers willingness to pay और actual expenditure का। तो आप देख रहे हैं उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर पहले कंज्यूमर के लिहाज से मेंशन किया हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस पहले इंडिविजुअल का वो होगा विलिंगनेस टू पे पहले इंडिविजुअल माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय फर्स्ट इंडिविजुअल के डिफरेंस के बराबर। सो सेम होल्ड्स फॉर द सेकंड कंज्यूमर। कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं हम, विलिंगनेस टू पे उसकी और उसी की ही एक्चुअल एक्सपेंडिचर की वैल्यू को हम डिफरेंस उसका करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट। सो यहाँ पर ये कैलकुलेशन की हुई है कंज्यूमर सरप्लस पहले इंडिविजुअल का और दूसरे इंडिविजुअल का। Now we can say that we have calculated the consumer surplus for both of the consumers. However, there is one final thing जो कि हमारा main objective था, and that was to find out the differential, जो फ़र्क है दोनों के consumer surplus में. And for that, you know, it's a very simple thing. We take the difference of the two values. Delta CS will be equal to CS2 minus CS1, और CS2 की वैल्यू और ये है CS1 की वैल्यू। इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 130.667, और ये है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बिटवीन द टू कंज्यूमर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ग्राफिकली आप इसको देख सकते हैं। द फर्स्ट पर्सन लूजेस दिस मच फ्रॉम पोटेंशियल सरप्लस व्हेन कंपेयर्ड विद द सेकंड पर्सन। आप देख सकते हैं उनका जो डिफरेंस है दोनों का कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यूज़ में वो है इतना, और हम कह सकते हैं कि वन पर्सन इज़ हैविंग दिस मच ऑफ
लॉस इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, अगर हम उन्हें कंपेयर करना चाहें तो। और ये एरिया एक्चुअली सम है इन दो एरियाज़ का जो कि यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, बिकॉज ये कंज्यूमर सरप्लस है इस इंडिविजुअल का और दूसरे का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये है। तो जो बाकी एरिया हमारे पास रह जाएगा वो होगा ये, जो कि हमने यहाँ पर इस बैकवर्ड स्लैश वाली लाइन से हाईलाइट किया हुआ है। तो इन दिस वे व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने कंज्यूमर सरप्लस का फर्दर एनालिसिस किया और ये देखा कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में हम डिफरेंस को कैसे असेस कर सकते हैं, एंड वी कैन टेल विच वन ऑफ देम इज़ बेटर ऑफ in terms of consumer surplus. And all of it was done with the help of integration. Thank you.